आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में रक्षाबंधन त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं की। सियासी कायदीन को भी बहनों ने राखी बांधी। तेलंगाना इमसेट के नतायज रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जारी किए। इंजीनियरिंग जुमरे में 80.41% और एग्रीकल्चर जुमरे में 88.34% तलबा क्वालिफाई। असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। रियासती सदर बीजेपी ने किया दावा। कत्ल के मंसूबे में मुलविस किराए की टोली का पर्दाफाश, 9 मुलजिमीन गिरफ्तार। एसपी नलगुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नारकोटिक्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस नाइजीरियाई शहरी गिरफ्तार। 3 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। डीसीपी सेंट्रल जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर आईटी और सनतें के.टी. रामा राव ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों को अगर सही ट्रेनिंग नहीं दी गई तब मुल्क का मुस्बत पहलू मनफी पहलू में तब्दील हो सकता है। रियासती वजीर के.टी.आर. ने यूनेस्को दीगर इदारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक्किद करदा 3rd इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तरीक़ेकार पर खिताब किया। के.टी.आर. ने कहा कि मुल्क के बेशतर नौजवानों की औसत उम्र 27 साल है और हमारा मुल्क इस लिहाज से नौजवानों का मुल्क है। अगर इन्हें सही वक्त पर ट्रेनिंग देते हुए बाइख्तियार नहीं बनाया गया तो बुनियादी मसाइल जूं के तूं बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नौजवानों की भलाई, ट्रेनिंग और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दामात में मसरूफ़ है। One has to be in consonance with the world at large, and one has to be in short, one has to be in sync with world at large. I think the truly universal appeal of Taji's teachings are there for all of us to emulate. They're there for all of us to actually adopt. I must congratulate the Heartfulness movement for bringing this conference of international youth kindness, focusing on youth with such values is of paramount for the growth of our society and for the growth of our world at large. If you look at India's population profile, I'm sure this must have been mentioned several times over the last couple of days, but let me just quickly add. If you look at India's demographic profile, India's average age is 27. That makes us one of the youngest countries in the world. 50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. 75% of India is less than the age of 44, making this a very productive age group to contribute not just to the state, not just to the nation, but also to the world at large. But when you look at this productive age group and when you look at what they have to offer, typically it's called the population dividend, the demographic dividend, and India, of course, has an unprecedented opportunity, as Daji was pointing out, of latching onto this, of leveraging this, and तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर तारीख़ इमारत गोलकुंडा में तक़रीब मुनक़्क़िद की जा रही है, जहाँ वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तिरंगा लहराएंगे। गोलकुंडा में किए गए इस तक़रीब के सिलसिले में इंतज़ामात का मुआयना करने की गरज से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ गोलकुंडा पहुँच कर इंतज़ामात का मुआयना किया। उन्होंने आला ओहदेदारों के हमरा यौम आज़ाद तक़रीब के सिलसिले में किए गए इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायतें जारी की।
సింగ్ చేస్తారు. అది ఒక చాలా పెద్ద యత్నంతో ఒక మెసేజ్ లాగా దట్ ఎంటైర్ తెలంగాణ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఆ టైప్లో ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరు దానికి సహకారం కావాలి. ఎవ్రీ ట్రాఫిక్ జంక్షన్ దగ్గర బండి ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆ టైంకి. ఎవ్రీవేర్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళ వీధిలో, వాళ్ళ ఆఫీస్లో, అదేవిధంగా ఎవ్రీ గ్రామ పంచాయతీలో, ఇది కాకుండా కొన్ని డెసిగ్నేటెడ్ లొకేషన్లో, ఆఫీసెస్లో అందరు కలిసి అప్పుడు ఎంతవరకు సాధ్యం ఉంటే సైరన్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అందరు కలిసి బయటే వస్తారు అండ్ దే విల్ సింగ్ ఎగ్జాక్ట్ 11 o'clock 11:30 అందరూ నేషనల్ యాంథమ్ సింగ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా రేపు 13th నాడు కూడా 11 o'clock ఇంకా ఒక పెద్ద కార్యక్రమం అంటే ర్యాలీ ఉంది. దానికి కూడా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో, ప్రతి వార్డులో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దాంట్లో కూడా అందరికీ మనవి ఉంది పార్టీ. मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से ऐलान करदा यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने तारीख़ी इमारत चार मीनार से तिरंगा रैली निकाली। यूनिवर्सिटी के NCC सब यूनिट 1 ने NSS सेल के इश्तिराक से इस तिरंगा रैली का अहतमाम किया था। इस रैली के ज़रिए हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में भी शऊर बेदार किया गया। इस रैली को मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर पत्थरघट्टी डिवीज़न महमूद सुहेल खादरी ने भी अपना ताउन पेश किया, जबकि यूनिवर्सिटी से वाबस्ता असातिज़ा प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, प्रोफेसर शकील अहमद, डॉक्टर MA सिकंदर के अलावा लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्दुल मुजीब और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ो चलो थोड़ा बैनर सब साथ आओ ये थोड़ा इकबाल उसको नीचे इधर हाँ हर कोई आवाज मेरे को दिए क्या ठहरो भाई थोड़ी देर बुला रहा है क्या ये साइड मेरे को 2 फोटो दे दो उसके बाद कर लेना बेटा ये खींच के अरे क्या उसको बोलना इस पे हम वर्क करेंगे हम इस पे पूरे उर्दू मीडियम फ्लैग नीचे ले गोल्ड मेडल आ रहे हैं सर तो आप यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फ्लैग हां राइट किसी उनको दे दो गोल्ड मेडल मानो वाली शबनम खातून सर बिहार से। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में मुनक़्क़िद किए गए एंट्रेंस MSET के नताइज जारी कर दिए। बादा उन्होंने मीडिया को नताइज के बारे में तफसीलात भी बताई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ रक्षाबंधन से जुड़ी दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना MSET के नताइज जारी कर दिए गए और वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नताइज जारी किए। इंजीनियरिंग में लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी को पहला मुकाम हासिल हुआ, साई दीपिका को दूसरा जबकि कार्तिकेया को तीसरा, पल्ले जलाकशी को चौथा और हिमावंशी को 5वां मुकाम हासिल हुआ है। इंजीनियरिंग ज़ुमरे में जितूरी नेहा को पहला, वी रोहित को दूसरा, तरुण कुमार रेड्डी को तीसरा, माहित अंजन को चौथा और जी श्रीराम को 5वां रैंक हासिल हुआ। इंजीनियरिंग MSET का नतीजा 80.41% और एग्रीकल्चर का 88.34% आया है। 18 से 21 जुलाई तक इंजीनियरिंग 30 और 31 तारीख को एग्रीकल्चर और फार्मा MSET इम्तिहान मुनक़्क़िद किया गया। 1,56,812 तलबा ने इंजीनियरिंग और 80,575 तलबा ने एग्रीकल्चर और फार्मा MSET इम्तिहानात में शिरकत की। इम्तिहान की प्राइमरी की जारी करते हुए तलबा से एतराज़ात भी वसूल किए गए थे। ESET का नतीजा 90.7% रहा। ESET में 79,954 तलबा क्वालिफाई हुए हैं। वज़ीर तालीम ने क्वालिफाई हुए तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग से मुतालिक जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। MSET की वेबसाइट पर रैंक कार्ड दस्तयाब रहेंगे।
తీసుకోవాలా, ఏది ఎక్కడుందని పిల్లలు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి ఉన్నత విద్యామండలి ఆధ్వర్యంలో ఒక కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ అన్ని కాలేజీలకు సంబంధించిన వివరాలు కానీ అన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పిల్లలు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. దానికి సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్ చైర్మన్ గారు కూడా చెప్తారు. మరొకసారి దీంట్లో విజయం సాధించిన ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ర్యాంక్ పాస్ అయిన అందరికీ కూడా మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ, మరొకసారి ఈ ఎంసెట్లో ఏమాత్రం ఇబ్బంది కాకుండా బాగా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఎక్కడ ఇది కాకుండా చూసిన చైర్మన్ గారికి అదేవిధంగా కానీ ఒకసారి टीआरएस रुकन खानसास कौंसल के कविता ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर अपने भाई व रियासती वजीर केटी रामाराव को प्रगति भवन पहुंचकर राखी बांधी और मिठाई खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए रियासत की आवाम बिलखुसूस खवातीन को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और अपने बचपन की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की। वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने अपनी क़यामगाह पर रक्षाबंधन त्यौहार के सिलसिले में अपने अरकान ख़ानदान के हमरा एक तक़रीब मुनक़्क़िद की, जहाँ उन्हें कई टीआरएस महिला कारकुनों ने राखी बांधी। हरीश राव ने रियासत की ख़वातीन को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन की तरक्की और ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए कई एक इक़दामात किए हैं और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीमों के क़याम के अलावा कल्याणी लक्ष्मी स्कीम और केसीआर किट स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। रियासत भर में राखी का त्यौहार नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि भाइयों ने बहनों को तोहफे पेश किए। इस सिलसिले में स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी को उनकी क़यामगाह वाक़ कामारेड्डी में उनकी बहन ने राखी बांधी। दूसरी जानिब सदर नशीन खानसास कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी को ज़िले नलगुंडे में टीआरएस महिला ख़वातीन ने राखी बांधी और मुबारकबाद पेश की। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने टीआरएस रुकन खानसास कौंसल के कविता को तयख़ुन दिया कि फौरी तौर पर अपने महकमे के अहदेदारों को हिदायत देंगे कि वो निज़ामाबाद और कामारेड्डी के मुकामी इदारेजात की तरक्की के लिए फ़ंड्स जारी करें। काबिल अज़ीं के कविता ने मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुँच कर वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए मुकामी इदारेजात की तरक्की के लिए फ़ंड्स जारी करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की।
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने बताया कि बीजेपी मंगोड़ असेंबली हलके में कामयाबी हासिल करने के सिलसिले में ऐसी हिकमत अमली तैयार कर रही है जिसके तहत हर 50,000 राय दहिंदों का एक इंचार्ज मुकर्रर करते हुए हर राय दहिंदे तक पहुंचते हुए उनके वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को ज़िले नलगुंडे के मंगलूर असेंबली हलके में जलसे आम का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर कौमी कायदीन शिरकत करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, जबकि ग्रेटर हैदराबाद के असम्बली हल्के जात और बल्ली डिवीजन्स में भी आज़ादी के 75 साल की तकमील पर घर घर तिरंगा लहराने और कौमी परचम की तकसीम का सिलसिला जारी है। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत बल्ली डिवीज़न शास्त्रीपुरम में भी तिरंगा रैली निकाली गई। कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन की क़यादत में निकाली गई इस तिरंगा रैली में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में कौमी परचम लहराते हुए आज़ादी के 75 साला जश्न पर मसरत का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीं कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने स्कूली तलबा से खिताब करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी और जद्दोजहद आज़ादी से मुताल्लिक़ तफसील बताई। इस मौके पर कौमी परचम की तकसीम भी अमल में लाई गई और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने घरों पर कौमी परचम लगाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कोरटला में मुकामी मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद आज़ादी विजय उत्सव के तहत रैली निकाली। इस रैली में बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों की कसीर तादाद मौजूद थी। आपसी भाईचारे के भी नारे लगाए गए। आवाम के हाथों में कौमी परचम भी नजर आए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिसके घर में नहीं पहुंचा है वो कोशिश करे, फिर वहाँ से करे। इस मौके से दूसरे लोग से इस मुल्क को आज़ाद किया है। रियासत के अजला और शहर के कई इलाक़ों में वज्र उत्सव के तहत जुमा को तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले के तहत बाद नमाज जुमा मेड़चल में वाक़े दरगाह के करीब से मकामी मुसलमानों की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई और हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में शऊर भी बेदार किया गया।
नलगुंडा पुलिस ने इक़दाम कत्ल के केस में मुलव्विस गैंग का पर्दाफाश किया और इसमें मुलव्विस 9 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल के अलावा नकद रकम और दीगर अशिया भी बरामद कर ली। सुपरिटेंडेंट पुलिस नलगुंडा रीमा राजेश्वरी IPS ने मीडिया को बताया कि एस स्वामी को कत्ल करने की गरज से किराए पर ली गई टोली के अराकीन बशमूल सरगना बालाकृष्णा को हिरासत में लेते हुए इस केस को हल किया गया है। इस केस से जुड़ी दीगर तफसीलात के बारे में उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। ఈ నెల 4వ తారీఖు రోజు ముంగూడు పోలీస్ స్టేషన్లో మనము ఒకటి అటెంప్ట్ మర్డర్ కింద ఒక కేసు కట్టడం జరిగింది. ఆ కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేసినాం. ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి మీడియా సోదరులందరికీ మనకు తెలుసు. ఉప్పటి విలేజ్ అంటే మనకు మునుగోడు నార్కట్పల్లి మునుగోడు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మునుగోడు నార్కట్పల్లి రోడ్డు మీదే మునుగోడుకి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి పేరు నిమ్మల స్వామి, మునుగోడులోనే వాటర్ బాటిల్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ చేస్తుంటారు. పని అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత షాప్ అంతా కూడా క్లోజ్ చేసుకుని సాయంకాలం ఇంటికి వెళ్తున్నటువంటి క్రమంలో గుర్తు తెలియనటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు మోటార్ సైకిల్ మీదే వచ్చి స్వామి మోటార్ సైకిల్ నడుస్తూ ముందెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ వెనక సైడ్ నుంచి వచ్చి 3 సార్లు అతని మీద ఫైరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇది సుమారు దాదాపు సాయంకాలం 8:29 మధ్యలో జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ మనకు తెలిసిన వివరాలు ఏంటంటే ఈ విక్టిమ్ నిమ్మల స్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతనికి పెళ్లి అయి పిల్లలు ఉన్నారు. భార్య పేరు సంధ్య, నిమ్మల సంధ్య. ఈమె బ్రాహ్మణ వెల్లంట ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మిడ్ డే మీల్స్ కుక్గా పనిచేస్తుంది. అదే స్కూల్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసినటువంటి బాలకృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తితో ఈమెకి సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ బాలకృష్ణ ఈ కేసుకు మనకు A1 అవుతారు, ప్రైమరీ అక్యూజ్డ్ అవుతారు. हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने नारायणगढ़ पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस एक नाइजेरियाई शहरी को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद की। DCP M राजेश चंद्रा IPS ने मीडिया को बताया कि नाइजेरियाई शहरी OC जेम्स को नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन हदूद से हिरासत में लिया गया है और उसके कब्जे से 30 ग्राम नारकोटिक्स ड्रग्स के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई हैं। मुलजिम के मुजरिमाना पस मंज़र और दीगर तफसीलात से भी उन्होंने मीडिया को वाकिफ करवाया। So I take this platform as an opportunity to appeal all the students. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సంవత్సరం जनवरी में ऑनरेबल CM साहब पूरा स्टेट के ऑल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट से एक मीटिंग लिए थे. CM साहब हैज़ गिवन ए क्लियर डायरेक्शंस दैट टू मेक तेलंगाना a drug free state in the entire country. As per that instructions, हैदराबाद सिटी पुलिस ने HNU एक नया विंग शुरू किया है. ये विंग पिछले 6 महीने में करीबन 60 केसेस ये ड्रग पेडलर्स को के ऊपर किया है और करीबन 250 से ऊपर लोगों को अरेस्ट भी किया है. उसमें 9 लोग नाइजीरियन नेशनल्स भी हैं. HNU हैज़ कम अप विथ ए ब्रेक थ्रू जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट ए ड्रग पेडलर ओसिग्वे चुकोमेका जेम्स
और उसका और एक नाम भी है अलमांजो मसिचुआ। इस पर्सन को आज किंग कोटी के नियाज खाना के पास अपहरण करके अरेस्ट किया है। उसके पास से 30 ग्राम MDMA, इट्स ए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग, 4 सेलफोन और 2 कंट्री के करेंसी नोट्स और 4000 का इंडियन करेंसी सीज किया गया है। उसके पास जो सेलफोन है उसमें करीबन 108 हैदराबाद का कंज्यूमर्स का लिस्ट भी है। उस लिस्ट को हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें करीबन 60 लोग का एड्रेस भी हमको पता लग गया है। रिमेनिंग आल्सो वी आर वर्किंग आउट एज पर NDPS एक्ट सेक्शन 27। ड्रग बेचना, सप्लाई करना और ड्रग कंज्यूम करना भी क्राइम है और इसके हिसाब से वी विल टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। ये सब लोगों पर जो कंज्यूमर्स है उनके ऊपर भी वी विल टेक ए वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। ए अफेंडर है चुक्कामा जेम्स, वो 2013 में भारत देश को पहली बार आया है। उसके बाद 16 में एक बार, 19 में एक बार और 21 में दूसरे नाम से, दूसरे पासपोर्ट से, कम्प्लीटली दूसरे नाम से वो आया है। इस साल मार्च में गोवा पुलिस ने ए अफेंडर को अरेस्ट किया है। 3 महीने जेल में बिताने के बाद भी ये फिर नाइजीरिया जाके फेक पासपोर्ट लेके इंडिया आके जो ट्राई कर रहा है। उस टाइम पे ऑन रिलेबल इंफॉर्मेशन इस अक्यूज को हमने HNU along with Narangada police has cracked down and apprehended this person. HNU पिछले 6 months में has arrested almost 9 Nigerian nationals and उसमें कुछ और भी nationals हैं. So all these people who have overstayed वीसा एक्सपायर होने के बाद भी जो ओवरस्टे करते हैं उनको भी हम डिपोर्ट कर रहे हैं. उनके बाद जो नेशनलिस्ट ये ड्रग और ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है उनके ऊपर वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. पूरा ऑपरेशन में इट वाज कैरिड अंडर एडिशनल DCP HNU स्नेहा. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर. रियासत भर में रक्षाबंधन त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया. बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं की. सियासी कायदीन को भी बहनों ने राखी बांधी. तेलंगाना इमसेट के नतायज रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने जारी किए. इंजीनियरिंग जुमरे में 80.41% और एग्रीकल्चर जुमरे में 88.34% तलबा क्वालिफाई. असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी शानदार कामयाबी हासिल करेगी. रियासती सदर बीजेपी ने किया दावा. कत्ल के मंसूबे में मुलविस किराए की टोली का पर्दाफाश. 9 मुलजिमीन गिरफ्तार. SP नलगुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस. नारकोटिक्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस नाइजीरियाई शहरी गिरफ्तार. 3 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद. DCP सेंट्रल जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस. इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं. रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़. हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा. अस्सलाम वालेकुम.